Hello students, today we are going to start your chapter 12, The School Boy. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. In first stanza, poet William Blake has described about the schoolboy's mentality, that how he feels when he is free and he enjoys the summer morning. I love to rise in a summer morning. He is full of enthusiasm and pleasure that he is woke in the summer morning when the birds are singing on the trees and distant huntsmen are winds his horn. They are going from one place to another, and the skylark sings with me. Skylarks, the small birds, are singing according to his wish. That is the sweetest company he is having. पहला पैराग्राफ में पोएट जो है वो एक छोटे से स्कूल बॉय के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि जब वो गर्मी की सुबह गर्मी के मौसम में सुबह जल्दी उठता है तब वो कैसा फील करता है। वो देखता है कि चिड़िया पेड़ों पर बैठकर चहचहा रही है, वहाँ से आने जाने वाले लोग हॉर्न बजा रहे हैं और बाकी पक्षी भी उसके साथ गुनगुना रहे हैं। उसे वो बहुत ही लुभावना लगता है। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न और oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. In next stanza, poet William Blake has expressed that when that schoolboy has to go to school during this summer season, then his joy fades away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day, and that little schoolboy has to spend his whole day in sighing and dismay. That means he's depressed to go, he's not enjoying the day, he is completely disappointed with the day he goes through. सेकेंड पैराग्राफ में पोएट ये बता रहा है कि पर अगर उसे गर्मी के मौसम में जब स्कूल जाना पड़ता है तब उसकी जो सारी इच्छाएं और जो उसकी खुशी है वो अचानक कहीं खो जाती है, क्योंकि उसका पूरा टेंशन उसकी पढ़ाई पर होता है, उसके बर्डन पर होता है जो कि पढ़ाई से उसे मिल रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा पूरा दिन उसका डिसअपॉइंटमेंट में निराशाजनक बीतता है, क्योंकि ही डज नॉट एंजॉयज द डे, क्योंकि वो कुछ भी enjoy नहीं कर पाता। Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit learning bower, one through with the dairy shower. In third paragraph, poet expressed that he is sitting drooping, that means uninterested. He is sitting and doing his work with no interest in the work. He spent anxious hours that when his work will complete and he will go outside and roam here and there to enjoy the summer season. थर्ड पैराग्राफ में पोएट एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो झुक कर बैठा हुआ है। झुक कर बैठना यानी कि मतलब उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, किसी भी चीज़ में इंजॉयमेंट फील नहीं हो रहा, और उसकी जो समय है वो इतनी परेशानी में गुजर रहा है, ना उसे उसकी बुक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, ना उसे किसी के साथ बैठकर कहीं पे गार्डन में बैठने में मज़ा आ रहा है, उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा सिवाय उस समर मॉर्निंग को एंजॉय करने के अलावा। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but droops his tender wing,
and forget his youthful spring. फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट एक्सप्रेस कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर किसी पक्षी को, किसी बर्ड को किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो चुपचाप बैठकर और गाना गाएगी। तो उसी तरीके से अगर हम किसी बच्चे को किसी डर और किसी डर या किसी चीज में बांध देंगे तो उसकी जो बचपन है वो किस तरीके से फ्लरिश हो पाएगा, वो किस तरीके से अपने आप को एंजॉय कर पाएगा, वो किस तरीके से बढ़ पाएगा, उसकी मेंटालिटी कैसे बढ़ पाएगी। पर जो बर्डन है उसके ऊपर एक बर्डन है। किस टाइप का बर्डन है वो बर्डन उसकी पढ़ाई को लेकर है, वो बर्डन उसकी जो एक्स्ट्रा बर्डन एजुकेशनल एक्टिविटीज के थ्रू किया जाता है, वो उस टाइप का कुछ बर्डन है। उस चीज को लेकर वो बच्चा कह रहा है कि यही उसकी जो इच्छाएं हैं, क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम में वर्क जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और यही वर्क जो है वो नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि वो अपनी समर सीजन को एंजॉय करे। O father and mother, if the birds are nipped and the blossoms blown away, and if the tender plants are stripped, or the joy of the spring day by sorrow and care's dismay. फिफ्थ पैराग्राफ में पोएट एक्सप्रेस कर रहा है कि वो अपनी माँ और पापा, फादर और मदर से ये कह रहा है कि अगर किसी भी फूल को नोच दिया जाए तो वो कभी भी बड़ा फूल नहीं बन सकता, और अगर किसी भी नाजुक पौधे को भी उखाड़ दिया जाए तब भी उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। तो उसकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी जब वो अपने स्प्रिंग डेज को ही इंजॉय नहीं कर पाएगा, जब वो दुख और केयर में ही बिता देगा, और जब वो किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाएगा तो वो लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएगा। How shall the summer arise in joy, or the summer's fruit appear, or how shall we gather what griefs destroy, or bless the mellowing year when the blast of winter appears? लास्ट पैराग्राफ में पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो चाहता है कि समर सीजन उसका खुशी से बीत जाए। वो चाहता है कि समर्स के फ्रूट जो अपीयर हो रहे हैं और वो उसे इंजॉय करे। वो चाहता है कि वो सारे ग्रीफ्स जो दुख हैं उसके, वो सारे उस समर सीजन में ख़त्म हो जाएं। वो चाहता है कि जो नेक्स्ट या जो साल वो उसका बीते वो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो, चार्मिंग हो, जिसे वो हमेशा याद रख सके। और तब जब विंटर्स का ब्लास्ट हो, दैट मीन्स कि जब विंटर सीजन्स आए तब वो उन समर्स की यादों को याद करके ही खुश रह सके। That's all about your poem. Question answers will be given to you afterwards. Thank you.